I spoke on what is the finger of God. की गई थी कि परमेश्वर की उंगली क्या है, I spoke upon what is the law of first mention. और पहली बार दर्ज हुआ का नियम इसके बारे में बताए थे, I spoke upon the dimensions of power. और सामर्थ का जो प्रदर्शन होता है, जो आयाम जो होता है उसके बारे में बताया गया, I also spoke upon what is the strong man. और ये भी बताया गया था कि बलवंत व्यक्ति वो कौन होता है। If you haven't heard that teaching अगर आपने शिक्षण को नहीं सुना है for some reason, कुछ कारण से, I strongly suggest that you go and take a look. It's on the YouTube. और आपसे अनुरोध करते हैं कि मेहरबानी करके जो शिक्षण जो था YouTube पे मिलेगा आपको, उस पर जरूर गौर Now, करिएगा। why do I say that? और क्यों ऐसा कहते हैं? If you're serious about your spiritual growth, if you're serious about your breakthrough, अगर आप अपने आश्रम के बारे में या फिर आप अपने आत्मिक वृद्धि के लिए गंभीर हैं, you need to do that. तो आपको ये करने की जरूरत है। God bless you and your loved ones. परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को आशीष दे। So I want to continue with my teaching. तो अपने शिक्षण को जारी रखेंगे, It's called binding the strong man. और वो है बलवंत व्यक्ति को बांधना। The first point, write this down. तो पहला मुद्दा लिख लीजिए। The devil thrives on secrecy. और देखिए, शत्रु जो है इस प्रकार के से गुप्त रहस्य को पेश करता है, He's a creature of darkness. और वो अंधकार का प्राणी है, He lives in darkness. वो अंधकार में रहता है, His kingdom is darkness. उसका राज्य भी अंधकार से भरा है, He hates the light. वो उजियाले से, प्रकाश से नफरत करता है। That's why many people, इसलिए बहुत सारे लोग, they say things like, oh, devil, it's a figment of imagination. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि शैतान वो तो कल्पना का एक वस्तु है बस, Oh, he's just a comical figure. और वो तो बस ऐसी कोई आकृति है। This is not to glorify him, this is to expose him. और देखिए, ये उसकी बड़ाई करने के लिए नहीं है, लेकिन उसको पर्दाफाश करने के लिए है। That's why many people don't receive breakthroughs. और इसलिए बहुत सारे लोगों को आश्रम नहीं मिलता। It should be realized that as long as Satan's strongholds remain concealed, the strong man is safe. और इस तरह से बताया जाता है कि जब तक शैतान की वो बातें जो है एकदम बंद रहती है, तब तक वो बलवंत व्यक्ति जो है वो सुरक्षित रहता है। In this way he can operate without being identified. इस तरह से देखिए, बिना उस पहचाने जाकर वो कार्य कर सकता है। That's why people fight with people. इसलिए लोग जो है लोगों से लड़ते हैं। How many understand what I'm saying? कितना समझ रहे हैं? Daughter-in-law fights with mother-in-law, और जो सास जो है वो बहू से लड़ती है, and the fellow is in secret watching. और वो व्यक्ति जब Brothers देखता है, fight with brothers. और भाई जो है भाई से लड़ते हैं, Families fight between themselves, और परिवार जो एक दूसरे से लड़ते हैं, and that fellow is at the side. और वो व्यक्ति खामोशी से और रहता है, He's in secret. और वो देखिए गुप्त में रहता है। People don't understand this. और लोग इस बात को समझते नहीं। But if you only knew लेकिन अगर आपको सिर्फ पता होगा that it is not your brother, it is not your sister, it is not somebody across, कि ये आपका भाई या आपकी बहन या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, things would have been different. तो चीजें अलग होंगी। अरे बोले ये हमको लड़ा रहा है. This is the man, this is the thing that is making us fight. Come on, let's together pray that this thing goes. How many और of you ये व्यक्ति understand? जो हमें लड़ा रहा है, देखिए चलो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि ये चीज निकल जाए। The devil operates and likes to operate in secrecy. Please listen to this. और देखिए शत्रु जो है एकदम गुप्त तौर पे काम करना पसंद करता है। You have to understand this truth. आपको इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। Paul the apostle wrote out of his revelation. और देखिए फिर पौलुस ने देखिए इस प्रकाशन के जरिए इस बात को पेश For किया, we wrestle not against flesh and blood, for we fight not against human beings, but we fight against principalities, powers of darkness, hosts of wickedness, rulers in the heavenly places. और देखिए उन्होंने ऐसे कहा कि हमारी ये लड़ाई जो है लहू और मांस से नहीं है, लेकिन प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आसमान में हैं। The devil likes secrecy. और शैतान इस प्रकार की गुप्तता पसंद करता है। How many of you listen right now? कि तो सुन रहे हैं इस वक्त। As soon as the strong man is identified, और जिस पल वो बलवंत व्यक्ति की पहचान हो जाती है, as soon as you know what is the root, the source of your problem, और जिस पल आपको पता चल जाता है कि आपकी समस्या की मुख्य जड़ या वो स्रोत क्या है, half of the victory is done. आधी विजय तो समझ लीजिए हो गए। Are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? That is why इसलिए identifying the strong man is of absolute importance. और देखिए उस बलवंत व्यक्ति को पहचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why this problem is occurring? Why this situation? और क्यों ये हालात? Many years ago, और कई साल पहले I saw a video. मैंने एक वीडियो देखा, It was sent to me by a prophet. और वो वीडियो जो कि पासवान जी को किसी भविष्यवक्ता ने भेजे थे, And in that video, और उस वीडियो में people are fighting with knives and swords. They are rushing each other. A security camera caught that. और लोग जो है चाकू तलवार और हथियारों से एक दूसरे से Two लड़ रहे groups हैं, are clashing. और दो लोगों का जो दल समूह जो है भिड़ रहे हैं। It was somewhere in Africa. और ये कहीं अफ्रीका में हुआ था।
And a security camera caught this. और सिक्योरिटी कैमरा ने इस बात को पकड़ लिया And they're coming and people are being cut and dying like that. और वे एक दूसरे के खिलाफ में आकर वहां पे मार काट मची हुई है And people are running, shouting. और लोग चीखते हुए चिल्लाते हुए भाग रहे हैं यहाँ And वहां suddenly, और अचानक a figure stands over there, tall figure. एक लंबी से कोई आकृति वहां उनके बीच में खड़ी होती And he looks like that. है और वो ऐसे देखते हैं And that figure glides and goes away. और फिर वो आकृति जो है धीरे धीरे मिट जाती है It's very frightening. Many people say, oh, that is a spirit, that is a thing. और बहुत सारे से ओ वो एक आत्मा वो कोई चीज थी But you see, लेकिन आप देखते हैं many times, बहुत बार these are spirits. This is a strong man. ये आत्मा ये वो मजबूत व्यक्ति है They only बलवंत knew व्यक्ति कौन? what is that spirit, what is that strong man that is causing two people, two groups to fight and kill and murder each other. If they would only know. अगर उन्हें ये पता होता कि क्या वो चीज है जो इन दो समूह के लोगों को एक दूसरे से लड़ा रही है There would be peace. वहां पे शांति आ गई होती Identifying the strong man is very important. और उस बलवंत व्यक्ति की पहचान कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है There are some families, I told you last time, in poverty, abject poverty. और पिछली बार जैसे बताया था कुछ परिवार बड़े भारी गरीबी में होते हैं These are the reasons why many promises of God, dreams are not fulfilled. और देखिए यही कारण होता है कि बहुत सारे परमेश्वर के जो दर्शन जो सपने जो पूरे नहीं होते हैं Prophecies are not fulfilled. भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती There's something opposing. और कुछ तो देखिए रोकता है You see, when David was anointed, अब देखते हैं जब दाऊद का अभिषेक हुआ the Bible says the Philistines heard it. बाइबल ऐसा कहती है कि पलिश्तियों ने सुना Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त The Philistines heard it. पलिश्तियों ने सुना When you carry the anointing, जब आप अभिषेक को लिए होते हैं you're a marked man, you're a marked woman for the devil. देखिए शैतान के लिए देखिए आप परमेश्वर के उसे छाप किए हुए स्त्री पुरुष होते हैं You're dangerous to him. आप उसके लिए बड़े खतरनाक होते हैं He's not worried about the fellow, giving bad words, fallen in the gutter. और देखिए वो व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है गटर में कहीं गिरा पड़ा है उसके बारे में वो फिक्र नहीं करता You are dangerous to the devil. आप शैतान के लिए खतरनाक है I want you to understand this. चाहते हैं कि आप समझें There's it's very important that you identify the strong man. And when you identify the strong man, why? At that time, your battle is won. तो जरूरी है कि आप उस बलवंत व्यक्ति को पहचान लीजिए और जब आप उस बलवंत व्यक्ति को पहचान जाते हैं और इस वजह से आपकी लड़ाई जो है आप जीत लेते हैं Say this after me. सभी लोग कहें Identifying the strong man बलवंत व्यक्ति को पहचानना will give me victory. और ये आपको विजय देगा One day a family came. एक दिन एक परिवार आया I was praying over this family तो इस परिवार पे प्रार्थना कर रहे and थे I found out that these 3 girls, they were not married. और इनको पता चला भविष्यवाणी के जरिए कि ये लड़कियां जो थी 3 लड़कियां उनकी शादी नहीं हुई थी And in their family, और के परिवार में there were women who were never married. ऐसी महिलाएं भी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी And they were like, yes. और वे चौंक कर कहने लगी हाँ I said, this is not now, this is perpetually happening for some generations in और your ये family. बस अभी की बात नहीं है लेकिन आपके परिवार में कुछ पीढ़ियों से चलती हुई बात है ये Listen carefully. सुनिए ध्यान से And they said, yes. I said, do you know why? इन्होंने पूछा आपको पता है क्यों Oh, but Pastor, it's my choice. Do you ओ know? पासवान ये तो मेरा चुनाव है Do you know क्या why? आपको पता है क्यों You should know the why. If you know the why, things will change. चीजें बदल जाएंगे And I told her और इन्होंने उनसे कहा that your great grandfather कि आपके परदादा went to this place. इस जगह पर गए He had an issue in their family. उनके परिवार में ऐसा कोई मामला था And he went to this thing और उस चीज के पास वो गए थे and said, और कहा उन्होंने जाके give me victory over this. इस पर मुझे विजय दे दो I dedicate all the girls in my family to you. तो मैं अपने परिवार के सभी लड़कियों को तुम्हें समर्पित कर देता हूं The moment I said that, जिस पल इन्होंने वो कहा 2 of them started manifesting, fell down. उनमें से 2 में कुछ होने लगा और गिर गई One of my members said, हमारे एक सदस्य ने कहा Pastor, पासवान जी you're only speaking to them. आप तो बस उनसे कह रहे हैं What happened to them? क्या हुआ उनको I said, इन्होंने कहा the devil has been identified. शैतान की पहचान हो गई है चोर है ना पहला भागता नहीं है वो एकदम घुल मिल जाता है He was just moving casually. Moment से चोर भागने लगता है वो. The moment you identify the thief, जिस पल आप चोर को पहचान लेते the thing is, you just don't identify the strong man. You deal with the strong man. महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ आप उस बलवंत व्यक्ति को पहचान ही मत लीजिए लेकिन साथ ही साथ आपको उससे निपटना भी है Diagnosis is half the problem solved. और देखिए रोग का पता लगाना है देखिए आदि समस्याओं को सुलझाना है Medication is the other half. लेकिन औषधि उपचार करना उसके लिए ये आधा और भी उसका You're इलाज है getting me? How many of you listen? कितना समझ रहे हैं Now you identify the strong man, देखिए अब आपने उस बलवंत व्यक्ति को पहचान लिया है and now you cast him out. और अब Hallelujah. आप उसे निकाल दीजिए यीशु के Today नाम में। I pray God will teach you this in the name of आज Jesus. प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको ये सिखाएगा यीशु के नाम में This is not stories. ये कोई कहानियां नहीं है This is
truth. ये सच्चाई है. Let me go to the second point. A strong man may have other evil spirits operating under his domain of authority. और देखिए उस बलवंत व्यक्ति के अधिकार और प्रभुता के अधीन में और भी दूसरी दुष्ट आत्माएं जो काम करती होंगी. Let me explain. बताने दीजिए. The strong man is the ruling spirit. और देखिए बलवंत व्यक्ति जो है वो शासन करने वाली आत्मा है. And under that ruling spirit, और उस शासन करने वाली आत्मा के अधीन में you have other spirits. दूसरी आत्माएं होती हैं. You know, many people, unfortunately, और देखिए बहुत सारे लोग, अफसोस की बात है, we don't deal with the strong man. हम बलवंत व्यक्ति से नहीं निपटते, We are dealing with the sub spirits or the spirits under that ruling spirits. लेकिन उस शासन करने वाली आत्मा के अधीन में जो छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं होती हैं हम उनसे निपटते हैं. And the problem is solved for a few days. और समस्या कुछ दिनों के लिए सुलझ जाती And है. again, have you seen people say, oh, now it's become worse? Have you seen that? क्या आपने देखा है लोगों के कहते हुए कि अरे मामला अब तो और भी ज्यादा बदतर हो गया है. You know, Jesus spoke. देखिए यीशु ने कहा, He says, the axe is laid to the root. यीशु ने कहा कि कुल्हाड़ी जो है जड़ पर रखी गई है. Where? कहा? God lays his axe not on the branches. He lays it at the root. When you hit the root, hey, the fruit goes. Hallelujah. देखिए परमेश्वर कुल्हाड़ी को जो है डाली या तने पर नहीं रखता लेकिन जड़ पे रखता है कि जब आप जड़ पर हमला करते हैं तो फल खत्म हो जाता है. Say it after me. Every satanic root in my life be uprooted in Jesus' name. और कहें ऐसा हर एक शैतानी जड़ मेरी जिंदगी से उखड़ जा रही है. Every satanic root of poverty be uprooted for my life and family. और कहें इस समय हर एक गरीबी की शैतानी जड़ मेरी जिंदगी और परिवार से उखड़ जाए. If you can pray louder, may the fire fall on you now. अगर आप जोर से प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर की आग उतरे आप पर अभी. Every satanic root of sickness in my body, in my family, be uprooted in the name of Jesus. हर एक बीमारी की Come शैतानी on. जड़ मेरे शरीर में से मेरे घर परिवार में से उखड़ जाए यीशु के नाम में. Fire Agony. fall upon the people right now. लोगों पर उतर आए इस वक्त. Open your mouth and say, fire of the Holy Spirit, burn every satanic root in my life and family in Jesus' name. Lift your hands, your voices now. चलिए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाज को ऊंचा उठाएं और कहें हर एक शैतानी जड़ मेरी जिंदगी मेरे घर परिवार से उखड़ जाए इस वक्त In the name of Jesus. यीशु के नाम में. The students only study in school. और विद्यार्थी लोग पढ़ाई से स्कूल में करते हैं. They get passing marks. उन्हें पासिंग का जो मार्क्स मिल जाता है. I passed. मैं पास हो गया. Good. How much did you get? Don't ask. पास हो गया 35. घर पे प्रैक्टिस करते ही नहीं है. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं. There's a ruling spirit. शासन करने वाली एक आत्मा है. Jesus said, यीशु ने कहा the axe is laid to the root. कुल्हाड़ी जो है जो जड़ पे रखी गई है. Many times we just cut off the branches and the stump and the root remains. और बहुत बार क्या होता है हम सिर्फ डालियां जो तने होते हैं उनसे ही निपटते हैं लेकिन जड़ें जो है वो बनी रहती हैं. We don't deal with the root that is a strong man and still those things are working. और देखिए हम जड़ों से निपटते हैं जो कि है वो बलवंत व्यक्ति और इसी वजह से चीजें जो है काम करती रहती The हैं. strong man must be bound. और उस बलवंत व्यक्ति को बांधा जाना जरूरी है. Let me give you an example. चलिए एक उदाहरण देते हैं. Write this down. लिख लीजिए. Example. उदाहरण. Bitterness is a ruling spirit. कड़वाहट जो है ये एक शासन करने वाली आत्मा है. No matter how anointed you are, इससे फर्क नहीं पड़ता कितने अभिषेकित हैं आप. this spirit comes against you. और ये आत्मा आपके खिलाफ में आती है. This spirit comes to poison your anointing. ये आत्मा आती है आपके अभिषेक को जहरीला बनाने के लिए. No matter how goody your marriage is. और इससे फर्क नहीं पड़ता कितना अच्छा है आपकी शादी. Bitterness is a ruling spirit. कड़वाहट भी एक शासन करने वाली आत्मा है. And under this ruling spirit, और इस शासन करने वाले आत्मा के नीचे let me give you those classes of spirit. और चलिए बताते हैं दुष्ट आत्माओं के उस वर्ग को भी स्तर को भी. 7 spirits. 7 आत्माएं. 1. एक. Resentment, और देखिए ये विरोध करना, hatred, नफरत, murder, हत्या, unforgiveness, अक्षमा temper, और गुस्सा, क्रोध violence, और हिंसा, anger. एकदम क्रोध. 7 spirits. और देखिए Could be more. Under this one class of spirits. और ये एक वर्ग की आत्मा के अधीन So है. now what we do? तो हम क्या करते हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम में? Anger, come out. गुस्सा बाहर. जाता ही नहीं है. You see, there's a class of ruling spirit, bitterness. Because the Bible says, this root of bitterness, book of Hebrews, और देखिए इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि ये कड़वाहट की जड़. the root of bitterness defiles. You see, it's a root. और देखिए कड़वाहट की जड़ जो अशुद्ध करती है आप देख सकते हैं ये एक जड़ है. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. तेरा मुंह सड़ा हुआ टमाटर जैसे क्यों है फिर? कुछ नहीं. हालेलुया, हालेलुया. कुछ नहीं. हालेलुया. शबबबबबा. अन्य भाषा बोलते हैं. ठीक है. Listen to me, sir. सुनिए ध्यान से. A root of bitterness. कड़वाहट की जड़. It destroys friendships. और ये दोस्ती को Leads खत्म कर people देती to है. murder people. ये इंसानों की अगुवाई करती है लोगों को मारने के लिए, Slander people. लोगों को बदनाम अपमानित करने के लिए. Father, we
me bind the spirit of murder. Nothing is happening. अभिदा इस हत्या की आत्मा को मैं बांध देता हूं, कुछ नहीं होता. Bitterness. कड़वाहट. It's a ruling class of और ये demons. शासन करने वाला ये वर्ग होता है. Binding any sub-spirit doesn't solve the problem of bitterness in life of a person. और देखिए इस प्रकार की आत्मा को बांधना जो है समस्या को सुलझाएगा नहीं किसी व्यक्ति की जिंदगी में. Jesus always, when Jesus was ministering, Jesus' ministry was a supernatural ministry. हम देखते हैं यीशु की सेवकाई, हमेशा हम देखते हैं यीशु ने जब सेवकाई की, उसकी सेवकाई अलौकिक सेवकाई थी. We have to learn from that ministry. हमें उस सेवकाई से सीखने की जरूरत है. Can I show it to you? क्या आपको दिखा सकते हैं? Go with me to the book of Mark 5. चलिए निकालेंगे मरकुस का 5वां अध्याय. Now, Jesus one day came to a place called Gadarenes. एक दिन यीशु गिरासेनियों नामक जगह पे आए And there he found a man और वहां पर एक व्यक्ति मिलता है उन्हें who was bound with many demons. जो कि कई सारी दुष्टात्मा से बंधा हुआ था. Most of us know the story. हम में से ज्यादातर लोग को इसकी कहानी पता है. And when that demonic person who was bound with demons, he saw Jesus knelt down before the Lord. हम देखते हैं वो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति जब उसने यीशु को देखा तो दौड़ कर गया और यीशु के सामने घुटने टेक दिया. Now here's what transpired between the Lord and this guy. और देखिए गौर करें यहाँ पे जो बात आ रही है. Mark chapter 5 verse 8. मरकुस का 5वां अध्याय 8वें वचन में For Jesus said to this guy, यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, come out of that man, बाहर आ उस व्यक्ति में से unclean spirit. अशुद्ध आत्मा. Is Jesus referring to many spirits or is he referring to one spirit? क्या यीशु बहुत सारी आत्मा को संबोधित कर रहे थे या एक आत्मा को? Somebody of you already got it. Then he asked him, फिर उसने उससे पूछा, what is your name? तेरा क्या नाम है? And he answered, और उसने उत्तर दिया. hey, when the Lord asks a demon, he has to answer. देखिए जब प्रभु दुष्ट आत्मा से पूछता है तो उसे उत्तर देना ही है. I like the Lord. You know, I was meditating on today, you know, Lord, Jesus ने ऐसा पूछा, तेरा नाम क्या है? ऐसा नहीं पूछा रहेगा. क्या अथॉरिटी से पूछा रहे, तेरा नाम क्या है? कैसा बोला रहेगा ना? कैसे बोला रहेगा? I tell you, come on, bless the Lord. चलिए धन्य कहे समय. Give Jesus a shout, somebody. चलिए उसका ताली की भेंट चढ़ाएं इस वक्त. Wow. All right. Then he asked him, what is your name? फिर उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? Now here is the demonic power answering. अब देखिए वो शैतानी शक्ति क्या उत्तर दे रही है. My name is Legion, मेरा नाम सेना यानी लिगियोन है, for we are many. क्योंकि हम बहुत हैं. Now watch this. गौर करें. A legion in those days, उन दिनों में लिगियोन जो होता है, or Roman legion, और देखिए शासन करने वाली लिगियोन, it was like how we have in India, Paltan. और जैसे भारत देश में होता है ना पलटन, It's a group of soldiers. और ये सैनिकों का एक दल होता And था. over that, you और उसके have, ऊपर, you know, in the Bible it talks about centurion. और देखिए बाइबल में सूबेदार कहा गया. Come on. Then there is a legionary. फिर उसके बाद हम देखते हैं उससे भी बड़ा. Hello. Yes. So this legion, तो ये लिगियोन, it was more than Bible scholars say. I don't say this. बाइबल के विद्वान कहते It's चलो, around 2,000 to 4,000 or 5,000 people. और 2000 से 4000 5000 तक की What सेना. this demon power is saying is, और ये दुष्ट शक्तियां क्या कह रही हैं? we are not one. हम एक नहीं है, We are many. हम बहुत हैं. The Lord says, who cares? कहता है, किसको परवाह है? I want to ask you आपसे पूछना चाहेंगे, and tell you. बताना चाहते हैं. It's not to tell you that Jesus was saying, "Arey, tera naam kya hai re?" No, this was a lesson for us because you see, God never takes information from the devil. और देखिए ये हमारे लिए सीखने के लिए एक सबक है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु कुछ भी शैतान से जानकारी नहीं लेता. Don't go and ask, "What is your name? और जाकर मत पूछा तुम्हारा नाम क्या है. कहाँ से आया तू?" Devil is a liar. शैतान झूठा है. You know what he will tell you? आप जानते हो क्या कहेगा? मैं बैंड्रा से आया. तू बैंड्रा से नहीं आया? मेरे को मालूम है तू किधर से आया. Jesus was operating under the prophetic. हम देखते हैं यीशु यहाँ पे भविष्यवक्ता की, was the prophet. He was the. वही तो भविष्यवक्ता है. Come on. What is he asking? वो पूछ रहे हैं. He went to the Samaritan woman and said, "Hey, सामरी स्त्री के पास जाके कहने लगे, 5. 5, Yes. हाँ, 1. 1, Yes. हाँ, And I'm the 7th one." He said, और मैं "Hallelujah." हूँ 7वां व्यक्ति. Yes, man of God. Yes. हाँ हाँ ये परमेश्वर का जन है. Why he has to ask? और क्यों पूछना पड़ा? He told Nathaniel, नतनएल से उसने कहा, "Hey, to Nathaniel." Come on. Such power. कितना जबरदस्त सामर्थ. Power. सामर्थ. He told his disciples, अपने चेलों से उसने कहा, "Go left, बाईं ओर जाओ, go right, दाईं ओर जाना, climb up, ऊपर चढ़ना, second floor, दूसरी मंजिल, right." दाएं ओर. Prophetic GPS. Hallelujah. भविष्यवक्ता है GPS. There I will have the Passover. और वहां पे मेरा फसह का पर्व होगा. And the apostles, Lord ने बोला अभी लेफ्ट जाओ. हमारा थॉमस ने बोले राइट है रे. नहीं लिखा है लेफ्ट. Isn't that the Lord amazing? क्या हमारा Hallelujah. प्रभु अद्भुत नहीं है? Prophetic GPS. Hallelujah. भविष्यवक्ता है GPS. It's in the word.
ये वचन में है। And some people say, yeah, prophecy क्या? Hey, read the Bible. बाइबल को पढ़िएगा। इधर उधर का जो स्टेशन पे बुक बांटते हैं वो देख के तेरा डॉक्ट्रिन मत बना, समझा? I want to tell everyone. सभी से कहना चाहेंगे I want to tell my pastors and everybody. सभी से कहना चाहेंगे। Some people call you. Please listen to this. कुछ लोग कॉल करेंगे, सुने, Hey, I saw you. मैंने देखा तुम्हें। Many people write to me like, और बहुत सारे इस तरह से लिखते हैं, Pastor, पासवान जी, I saw you in a white suit. और मैंने तुम्हें व्हाइट सूट में देखा। My wife says you don't have a white suit. और मैंने कहा तुम्हारे पास कोई व्हाइट सूट नहीं है। Pastor, I saw you in a stadium. और पासवान जी, मैंने आपको स्टेडियम में देखा। Never ऐसे सब लोगों को सुन के कभी भी अपनी मिनिस्ट्री मत बांधो. Prophecy is what God will speak to you first. भविष्यवाणी वो जो परमेश्वर सबसे पहले आपसे बोलेगा। तुम्हारे बारे में प्रभु तुमको पहले बोलेगा. First thing. पहली चीज। And prophet will come and speak to you. और भविष्यवक्ता आके आप पे बोलेंगे। And you say, हाँ यार ये तो ठीक है बोल रहा है. Secondly, दूसरी चीज सुनिए, your calling आपकी बुलाहट is ordained by God. परमेश्वर द्वारा ठहराई जाती है। He will give you glimpses of that calling. और देखिए उस बुलाहट की वो आपको झलक देगा। What gift is operating? कौन सा वरदान काम कर He रहा will है। give you that jhalak. और देखिए वो आपको झलक देगा। Come on now. When you go to buy a house, अब कोई घर खरीदने जा रहे they हैं, will show you show flat. If show flat is not there, they will show you some photograph, something that अगर they वो will नहीं है तो कुछ ना कुछ तस्वीर तो दिखाएंगे जरूर। आपका फ्लैट ऐसा होगा, यहाँ पे पूल होगा, यहाँ पे झूला होगा, यहाँ पे ना गार्डन होगा, और आप उसको देख के खरीद ले लेते हैं. अब उसे देख के खरीद लेते हैं। सुनिए, वो झलक है, झलक झलक सुनिए, झलक है ये। झलक. You know, so God will give you glimpses of your ministry. तो परमेश्वर आपकी सेवकाई की झलक आपको देगा। Never get turned by these things. और इन चीजों में फंसे नहीं। Let your information come from the Holy Spirit. और ये आपकी जानकारी पवित्र आत्मा से आए। Third thing. तीसरी चीज, Never only pray for one gift to operate. See today, please देखिए, don't get आज, me wrong. सुनिए। Please, I was talking to one man of God. पासवान जी परमेश्वर जन से बात कर रहे थे। He said, son, उन्होंने कहा बेटे, don't only prophesy. सिर्फ भविष्यवाणी मत करो, That's only one dimension. ये तो सिर्फ एक ही आयाम है। There are 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ऐसे 9 वरदान हैं। Operate in all the gifts of the Holy सभी Spirit. पवित्र आत्मा के सभी वरदानों में काम करें। So what is the use? Your people come to church, only prophecy, और क्या no फायदा deliverance. लोग कलीसिया में आते No सिर्फ healing. भविष्यवाणी के लिए। कोई चंगाई Your नहीं, कोई number छुटकारा is नहीं। this. क्या ये Your गाड़ी number is तुम्हारे this. गाड़ी का नंबर ये। Hallelujah. Hallelujah. क्या man of God है. परमेश्वर जन है आप। वही गाड़ी में बाहर वापस. What is the use? I want to show today. I दिखाना just चाहते didn't हैं। do prophecy. Just prayed for healing, prayed for deliverance, prayed for salvation, prayed for miracles. All. सब कुछ। So don't go on asking demons their name. What is your name? तो जाकर तू सामने से पूछना तुम्हारा नाम क्या है। Ball. बाल पकड़ के बॉल. Have you seen that? क्या आपने देखा ये। One man of God told me, Pastor, आप बाल नहीं पकड़ते, बाल पकड़ना चाहिए. मैं बोले बाल क्यों पकड़ना चाहिए? बोले दुष्ट आत्मा के बाल पकड़े ना तुम्हारे वश में आता है. बोले चल, you don't need to catch the hair. आपको बाल पकड़ने की जरूरत नहीं है, You need the word in your mouth. आपके मुंह में वचन होना चाहिए। Stop that nonsense. वो बेतु का काम बंद करें। One girl came एक लड़की आई, and she showed me the marks. Her mother said, brother कसं मारलं बघा, झाडवाने मारले बघा. वो बताने लगे देखो कैसे झाड़ू से मारे। मला कशाला मारलं, आईने मारलं, डॅडीने मारलं, चांगले मारलं. नाही नाही नाही, डॅडीने मारलं नाही. काय झालं मग? ते आम्ही गेलो होतो तिथे, ते काढायला गेलो होतो, असं बांधलं आणि असं मारलं, मीच परत घेऊन आली तिला. So what nonsense is ये this? सब क्या बेतु का चीजें हैं। You don't beat people, man. They don't know whom to beat. वे नहीं जानते किसको पीटना है। They're beating people. लोगों को पीटते हैं वे। Don't do this. ऐसा मत करिएगा। Jesus asked this thing because he wanted to show you और यीशु इन चीजों को पूछा क्योंकि वो दिखाना चाहता है। the ruling spirit. शासन करने वाली आत्मा। Unclean spirit. Jesus dealt with the ruling spirit. He अशुद्ध said, come out, you ruling spirit. And that was it. All others went away. और यीशु ने कहा तू शासन करने वाली आत्मा बाहर आ, और उसी वक्त सारी आत्मा निकल गई। Somebody lift your hand and say, I receive right कोई now. तो अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। So you deal with the ruling spirit. तो आप शासन करने वाली आत्मा से निपटें God will show it to you. और परमेश्वर आपको दिखाएगा। Lift your hands. चलिए अपने हाथ उठाएं, Say, Lord, show me कहे प्रभु मुझे दिखा the source of my problem. मेरी समस्याओं के स्रोत को। Begin to pray, begin to pray, begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना करें, Show प्रार्थना me करें। the root of my problem. मेरी समस्या की जड़ मुझे दिखा Say, Lord, show me why this trouble is there. और कहें कि प्रभु मुझे दिखा क्यों ये मुसीबत है यहाँ, Show me the root in Jesus' name. और इस समस्या की जड़ मुझे दिखा प्रभु In the name of Jesus. यीशु के नाम में।